Guys, I'm making this video because something happened last week, a news which I got to know last week that has affected my mental well-being tremendously. And and whenever I get distressed, either I write something or I speak out. So this uh, on this opportunity, I thought that I must speak out. Last week I heard a news that a man in his 40s committed suicide. He was working as a contract employee in Rajasthan High Court. It's a very sorry state of affairs of humanity. We are in the times when more deaths can occur or perhaps occur due to overeating than hunger. In such times, if we lose a life because someone was hungry or he failed to feed his family, I guess it's the tightest slap on the face of the humanity. Look, as an individual, either you or me, we can virtually do nothing. If I see myself, I'm too powerless and my voice is too feeble that I can bring any change in the society. But the reason that I am voicing out is that I want to be remembered as someone who tried to extinguish the fire than the one who ignited it. Well, this video is not about Manish Saini who committed suicide. This video is to address the larger point and a much bigger an issue, a perennial issue which has been persisting for many decades. This video is to lend my voice to thousands of our Fauji brothers. For past 2 3 elections, you would have seen that servicemen have become the election mudda. But it for any politician you may take for an example, any politician, it is nothing but a lip service. I'll tell you what the actual issue is, which no politician is willing to address, because perhaps the people who are being affected don't constitute a vote bank. We expect our Faujis, they must always be ready to live their lives for us. Us means for the country. But we never introspect that do we do enough to make ourselves worth that life of that Fauji? You know, for the death of Manish Saini, again, the same contract worker in Rajasthan High Court who committed suicide, I squarely blame the judges on the High Court bench. I will mince no words in blaming all the chiefs of our defense services till date for not putting a right price to the life of his own military man. An officer first fights for his men. Why have chiefs not fought with the government for their own men? Now I'll tell you what the issue is all about. देखिए, एक फौजी को पेंशन लेने के लिए पेंशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए तकरीबन 15 साल नौकरी करनी पड़ती है, और एक ऑफिसर को 20 साल. व्हेन आई से फौजी, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, जो सैनिक होता है या नॉन कमीशन ऑफिसर तक होता है या जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है. साहब, इनको 15 साल नौकरी करनी पड़ती है, और ये रूल 1960-65 में जब आर्मी और एयरफोर्स के सर्विस रूल बने तब से ये रूल बना हुआ है. 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आई और अपने सेंट्रल सर्विसेज रूल्स जो सीसीएस थे वो चेंज कर दिए, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया और बोला कि साहब जो 15 साल से कम नीचे नौकरी करता है लेकिन 10 साल तक सर्विस करता है तो साहब उसको पेंशन मिलेगी. अब सीसीएस रूल्स अमेंड हुए तो उसका इम्पैक्ट डिफेंस रूल्स पे भी आया और डिफेंस सर्विस रूल्स भी अमेंड हो गए. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने सबने अपने अपने कर दिए. तो एज द रूल स्टैंड्स टुडे इज कि अगर कोई भी फौजी, बी इट एन ऑफिसर और बी इट सर्विसमैन, वो 10 साल की नौकरी करता है लेकिन क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस जो सर्विस है उससे कम करता है, तो उसको प्रो रेटा बेसिस पे पेंशन मिल जाएगी. दिस लुक्स गुड, राइट? पर एक्चुअली इतना अच्छा है नहीं ये. मैं बताता हूँ क्यों. सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी के अंदर
हम जो कास्ट की बात करते हैं ना, कास्ट से भी गलत चीज होती है, वो होती है क्लास। वी फॉर्म द साइलोज ऑफ अवर ओन क्लासेस। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी अपनी क्लास है, फौज में भी अफसर की अपनी क्लास है, एक सैनिक की अपनी क्लास है। और ये जो दो ऊपर क्लासेस बनी ना, ऑफिसर वाली और ब्यूरोक्रेट्स की, ये अपने आप को हायर क्लास मानते हैं। दे आर द सन्स ऑफ द ग्रेटर गॉड। साहब इन्होंने रूल ये बनाया कि अगर एक ऑफिसर रिटायर होता है अपनी क्वालिफाइंग सर्विस से पहले 10 साल करने के बाद, तो सिर्फ उसको ही पेंशन मिलेगी। जो नीचे बेचारा लड़ता है ना जो ग्राउंड पे, उसको नहीं मिलेगी। वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की इंटरवेंशन के बाद ही इस रूल को डिस्क्रिमिनेटरी माना गया और बोला कि नहीं, अगर ये ऑफिसर्स को मिलेगी तो ये जवानों को भी मिलेगी। चले, एज द रूल स्टैंड टुडे, एक जो पीबीओआर होता है, एक जो जवान होता है, एक जो सैनिक होता है, उसको भी 10 साल नौकरी करने के ऊपर बाद प्रो रेटा बेसिस पे पेंशन मिल जाएगी। भाई अगर रूल बन गया है ऐसा, तो वाई देयर इज अ नीड फॉर मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस? वाई एम आई टॉकिंग? The reason that I'm making this video is that this rule is completely हास्यास्पद, laughable. मैं बताता हूं क्यों। देखिए, रूल ये कहता है कि साहब आपने रिटायरमेंट लेके किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करना है तो आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन मिलेगी का मतलब ये है कि आपको एक्स सर्विसमैन का टैग मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का टैग मिलेगा तो मतलब ये है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ओनली देन योर चिल्ड्रन विल गेट एडमिशन इन विल गेट रिजर्वेशन इन दी कॉलेजेस, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो। और अगर आपने 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट दी और आपने कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करी, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको सर्विसमैन का टैग नहीं मिलेगा और आपके बच्चों को कोटा भी नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से, इफ इन केस आई एम नॉट रॉन्ग, शायद हेल्थ सर्विसेज भी नहीं मिलती। अब रूल इतना लाफेबल क्यों है साहब? ये रूल बना था 1986 में। तब कितनी गवर्नमेंट जॉब्स हुआ करती थी? गवर्नमेंट वॉज द मेन एम्प्लॉयर एट दैट टाइम। आज के रेट में तो आपका प्रधानमंत्री खुद कहता है द गवर्नमेंट हैज गॉट नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। 1980s was a time when every day a new PSU was cropping up. We are sitting in 2024 when almost every day a PSU is being privatized. तो साहब आपके देश का अगर चरित्र बदला तो क्या आप रूल नहीं बदलेंगे? बताइए, अगर आपके देश का चरित्र बदलता है, अगर आप सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, तो क्या आप इस बात पे नहीं सोचेंगे कि साहब हमारे जो रूल्स बने हुए हैं, जो सोशल ड्रिवन हैं, सोशल क्लास ड्रिवन हैं, जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट स्टाइल ड्रिवन है, उनको भी बदला जाए? चले, गोली मारिए। आपने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, प्राइवेट नौकरी ज्वाइन की, छोड़ दीजिए इसको। एक फौजी था बेचारा, 21 साल में उसने फौज ज्वाइन की, 32 साल में यानी 11 साल बाद छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? माँ बाप बूढ़े थे, भाई था जो खेती बाड़ी संभालता तो उसकी डेथ हो गई, बाप की बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है। अब बाप बुलाता है कि बेटा आ, खेत संभाल, भाई मर गया तेरा। बेटे ने रिटायरमेंट ली, पहुंच गया बाप के साथ हल जोतने। पेंशन ठेंगा। क्यों? सब आपने सरकारी नौकरी थोड़ी ज्वाइन की है। अरे भाई, अंडरस्टैंड द पर्सन। इतने मतलब लोग जो उन्होंने ये रूल बनाया है, वो दिमाग अपना फ्रीजर में रख के आए थे क्या? पेंशन क्या है? पेंशन इज माई सोशल सिक्योरिटी।
It's my financial security for my future when I'll not be able to earn. तो मूर्खों, जिसने ये रूल बनाया उसको कह रहा हूं, मूर्खों, जब आपने ये रूल बनाया तब आपने ये सोचा नहीं कि साहब जो आदमी एक फौज की नौकरी छोड़ के एक सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगा, वो ज्यादा फाइनेंशियल, उसको ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या सोशल सिक्योरिटी चाहिए, या उस आदमी को जिसने फौज की नौकरी छोड़ के खेत संभाला है? साहब इतना दिमाग तो कोई भी अप्लाई करेगा ना, और इतना दिमाग आप अप्लाई नहीं कर सकते तो साहब आपको आईएएस बनने की आपकी औकात नहीं है। आप कृपया करके नौकरी छोड़ दिया करिए, क्योंकि आप जो बेवकूफी भरा रूल बनाते हैं ना, उसको चेंज कराने में एक अच्छे खासे इंसान की बवासीर हो जाती है, जो कोर्ट के धक्के डालता है, खाता है रिट पिटीशन डाल डाल के, और सरकार खड़ी होती है उसको अपोज करने के लिए बेमतलब में। मेरी लैंग्वेज में मत जाइए। आई एम ट्राइंग टू होल्ड बैक द एक्चुअल वर्ड्स आई एक्चुअली वांट टू यूज, क्योंकि ये पब्लिक वीडियो है। मुझे बताइए, एक आदमी जिसने ये सोचा कि उसका बाप बीमार है, माँ बीमार है, उसको उनके आखिरी दिनों में, उसकी आखिरियत में उनकी केयर करनी है, और उसके लिए वो अपनी लगी लगे सरकारी नौकरी की कुर्बानी देता है, उसको पेंशन की ज्यादा जरूरत है, या जो आदमी फौज की नौकरी छोड़ के कहीं पर तहसीलदार लग जाता है? इतना तो कोई भी दिमाग अप्लाई करेगा ना। अनफॉर्चुनेटली इस मुद्दे पे ना कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब कितने होंगे? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, इतने ही होंगे ना, इससे ज्यादा लोग तो नहीं होंगे। सब 50,000 लोगों का वोट बैंक अक्रॉस द कंट्री वोट बैंक हो ही नहीं सकता, तो कोई पॉलिटिशियन इस पे क्यों बोलेगा? नो पॉलिटिशियन विल स्पीक ऑन इट। बट इफ इन केस यू डोंट स्पीक फॉर दीज पीपल टुडे, ट्रस्ट मी, नो वन विल बी देयर टू स्पीक फॉर यू टुमारो। और मैं इन लोगों को बोलता हूं, जब मैंने सिमरन छाबड़ा के डेथ के ऊपर वीडियो बनाया था, इनमें से शायद किसी ने भी उसको लाइक नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, उसकी बात नहीं की होगी। आई बिलीव सो। इसलिए इनकी कोई बात नहीं कर रहा। इट्स अ टिट फॉर टैट। That's how the society works. You scratch my back, I scratch yours. तो साहब वक्त है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो पे कमेंट करके, इस वीडियो को आगे करके, या छोड़िए इस वीडियो को, आप अपने प्लेटफॉर्म्स पे इस मुद्दे को उठाएं, इन लोगों की प्लाइट को समझें, इन फौजियों की। दे आर द वंस जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे प्रीशियस 10, 11, 12, 13 साल हमारी प्रोटेक्शन में गुजारे हैं। इनको न्याय दिलाने की गुहार करें। इफ यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम, ट्रस्ट मी, यू विल हैव नो राइट टू आस्क एनीवन टू स्पीक ऑन योर बिहाफ। और हमारी जिंदगी इतनी लंबी है, कभी ना कभी हर एक को जरूरत पड़ती है। अरे अडानी खुद मोदी के चरणों में बैठा रहता है, और मोदी अडानी के चरणों में बैठा रहता है। उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, जो कि इतने बड़े लोग हैं, तो आपकी मेरी औकात ही क्या है? इसलिए प्लीज स्पीक आउट ऑन दिस इशू। एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू वांट ऑन दिस इशू, you can please write me, and I'll give the details of these issues. Or in fact, if in case you're going to Google it, you will see a lot of people, voicing out for their plight. So please, enough material is there for you to understand what the issue is and speak on it. Thank you.